اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ ناظرین کرام، تزکیہ نفس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں۔ بات چل رہی تھی ذکر کی کہ ذکر کیسے ہے، ذکر کا مطلب کیا ہے۔ ذکر کا مطلب لفظ نہیں ہے، کبھی بھی لفظ اس ذکر کی روح تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ لفظ ہمیشہ قالب ہوا کرتے ہیں، مفہوم اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لفظ کو اگر کہیں پر لکھا جائے اور اس کو کھرچا جائے تو اس کے اندر سے مفہوم نہیں نکلتا، بلکہ یہ اس کا معنی ہے، اس کے اندر موجود وہ مفہوم جس کو آپ نے لفظ کا لباس پہنایا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ الفاظ خود ہدف نہیں ہیں، بلکہ ہدف ان کے اندر پوشیدہ وہ معنی اور وہ مفہوم ہے جس کو ان لفظوں نے اپنا لباس دیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا دل متوجہ ہو۔ ذکر کا مطلب ہے انسان کی روح متوجہ ہو۔ ذکر کا مطلب ہے انسان کی فکر متوجہ ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ تفکر الساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کی وہ سوچ جس کے نتیجے میں انسان کی روح اللہ سے متصل ہو اور روح ذکر پر مجبور ہو جائے، وہ تفکر 70 سال کی بغیر روح کے اذکار اور عبادات پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس لیے یہ یقینی ہے کہ یہ جو ذکر ہے، ذکر لسانی کے ساتھ ساتھ ذکر قلبی بھی ہونا چاہیے، یعنی انسان کا دل بھی اس ذکر پر مجبور ہو اور وہ ذکر کرے۔ ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں، بیٹھے بیٹھے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم نے جنت میں اپنے لیے ایک درخت اگایا ہے۔ صحابی بڑا خوش ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو میں جنت میں نے باغات کے باغات اگا دیے ہوں گے، اس لیے کہ میں ہر روز صبح سے شام تک ان اذکار میں مصروف رہتا ہوں۔ فرمایا کہ ہاں، اگر تم نے پیچھے سے آگ نہ بھیجی ہو ان باغات کو جلانے کے لیے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے جب تم ذکر کرتے ہو تو ذکر روح رکھتی ہے، اس کی وہ روح عالم معنی میں، عالم آخرت میں اپنی حقیقی شکل اور صورت کے ساتھ سامنے آتی ہے، اور تمہاری اس ذکر کی روح جنت میں موجود ان نعمتوں کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن اگر ان اذکار کے ساتھ کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی پر تہمت لگاتے ہو، کسی پر کیچڑ اچھالتے ہو، کسی کی کردار کشی کرتے ہو، کسی کا دل دکھاتے ہو، کسی کو نقصان پہنچاتے ہو، کسی کی دل آزاری کرتے ہو، کسی کی زندگی میں روڑے اٹکاتے ہو، ہر وہ عمل جس سے تمہارے وجود کے ذریعے سے کسی اور کو تکلیف پہنچے، وہ آگ ہے۔ تم صبح سے شام تک ذکر کرو اور اس کے بعد ایک تکلیف کسی کو پہنچاؤ، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر ایک طرف اور وہ تمہاری طرف سے پہنچنے والی تکلیف دوسری طرف ترازو کے پلڑے میں ہو اور پھر اس کو توڑ کر دیکھا جائے کون سا بھاری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آب زمزم کے لیے تم نے صبح سے شام تک محنت کی ہو اور ایک جرکین، ایک بالٹی، ایک پورا کین تم نے بھر لیا ہو، بھرنے کے بعد آخر میں ایک قطرہ اس میں نجاست کا ڈال دیا، ساری کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم ان الجنت قیعان وغراسها لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ واللہ اکبر، جنت ایک بے نعمت بیابان ہے،
बेज़र बयाबान है, खुश्क बंजर मैदान है, और उसका फल, उसकी नेमतें, उसके दरख्त, उसके बागात क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, सुबहान अल्लाह है, अल्लाह अकबर है, दुआएं हैं, मुनाजातें हैं, अल्लाह के अस्माए गिरामी हैं, कुरान की आयात हैं। जब तुम ये तमाम चीज़ें पढ़ते हो, सुनते हो, अमल करते हो, तो ये तुम्हारी जन्नत को आबाद करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये सारा करो और करने के बाद पीछे से माचिस सुलगाओ और आग भेज दो, तो तुम्हारी एक हरकत, एक गुनाह, एक गलती उन तमाम तुम्हारी अपनी बनाई हुई नेमतों को जलाकर भस्म कर देती हैं। इन्नल जन्नत क़ियानुन व ग़िरासुहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह वल्लाहु अकबर। उस बयाबान में तुमने जो मेहनत की है और फसलें उगाई हैं, उन फसलों को अपने किसी गलत अमल के नतीजे में जलाओ मत, उसको महफूज रखो। कुल्लु नफ्सिन बिमा रहीनतुन, हर इंसान गिरवी है अपने ही अमल के, अपने अमल से हटकर कुछ नहीं आए। जो कुछ वो करेगा वही उसका सरमाया है, चाहे मनफी मानों में, चाहे मुस्बत मानों में। मैं एक गलत बयानी करता हूं, एक गाली देता हूं, एक बेहुरमती करता हूं, एक किसी की शख्सियत को मस्ख करने की कोशिश करता हूं, एक दफा किसी शख्स के दिल को तोड़ता हूं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये छोटा जुर्म है? नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है। चाहे मैं सुबह से शाम तक जिक्र करूं, लेकिन वो जिक्र लफ्जी है, रूह का जिक्र नहीं है, जिक्र मानवी नहीं है। जब जिक्र मानवी नहीं है, रूह का जिक्र नहीं है, तो इन लफ्जी अज़कार से मैं उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला उनकी शफाअत हम सबको नसीब फरमाए, हरम काबा में थे, तशरीफ लाए, हरम काबा की ज़ियारत की, तवाफ़ किया, और उसके बाद हरम की बिल्डिंग को, हरम की दीवारों को, हरम के उस चार कोना इमारत को देखा, और उसकी तरफ देखकर एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह के घर, ए काबतुल्लाह, तो कितना अजीम है, तो कितना बड़ा है, तेरा मकाम कितना बुलंद है। कायनात में बसने वाले तमाम मुसलमानों और मुवहिदीन को अल्लाह ने दावत दी है तेरे गिर्द घूमने की, तेरे गिर्द तवाफ करने की और तुझे चूमने की। इतना तेरा मकाम, इतनी तेरी अजमत। उसके बाद फरमाया, लेकिन ए काबा याद रख कि तेरी इज्जत और तेरी तकरीम, तेरे तकद्दुस, तेरे मकाम से ज्यादा एक मोमिन का मकाम है, एक मोमिन का मकाम। फरमाया कि अगर एक मोमिन की दिलाजारी करो, एक मोमिन की हुर्मत को पामाल करो, एक मोमिन की इज्जत को पामाल करो, एक मोमिन पर तोहमत लगाओ, एक मोमिन के हवाले से प्रोपेगेंडे करो, एक मोमिन को बदनाम करने की कोशिश करो, एक मोमिन को अजियत दो, तो ये जो एक मोमिन को अजियत देना है, ये काबे को ढाने से ज्यादा बड़ा जुर्म है। इसलिए कि काबे को ढाने के बाद उसकी तामीर हो सकती है, लेकिन एक मोमिन की इज्जत को पामाल करने के बाद उसकी तामीर मुमकिन नहीं है। सादिक़ आले मोहम्मद अलैहि व अला आबाइहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं हमें बताया कि जिक्र अमली क्या है और जिक्र लिसानी क्या है। जिक्र अमली यानी हमारे आज़ा व जवारे हैं, हमारा हाथ जिक्र में मसरूफ हो, हमारी निगाहें जिक्र में मसरूफ हो, हमारी जबान भी जिक्र में मसरूफ हो। जो जबान कहे उस पर अमल हमारे हाथ करें, उस पर अमल हमारी आंखें करें, उस पर अमल हमारे कान करें। हमारे कान गीबतें न सुने, हमारे कान गाने न सुने, हमारे कान झूठ न सुने, हमारी आंखें हराम को न देखें, हमारे कदम हराम की तरफ न उठें, हमारे हाथ हराम की तरफ न जाएं, हमारे पेट में हराम के लुक़मे न आए, हमारा हाथ हराम न लिखे। अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी देखिए,
अमीर उल मोमिनीन से बढ़कर कायनात में कामिल तरीन इंसान कोई और नजर आता है? कामिल तरीन इंसान वो हस्ती जो अल्लाह की सिफात का कायनात में मजहर है, वो हस्ती जो खलीफतुल्लाह के उस मनसब पर फायज है, वो हस्ती जो कामिल तरीन हस्ती है। लेकिन वही हस्ती जो रातों को उठती है, जब अमीरुल मोमिनीन रातों को उठते हैं, गिरिया करते हैं, रातों को उठते हैं, जिक्र करते हैं, रातों को उठते हैं और अश्क बहाते हुए अल्लाह से राज़ो नियाज करते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी के हवाले से तारीख़ में लिखा है कि सलमान फ़ारसी सफ़र से वापस आए, मदीना के नखलिस्तानों से गुज़रते हुए कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ ने उन्हें मुतवज्जह किया, परेशान हुए। रात की इस तारीकी में सहर के मौके पर ये कौन है जो रो रहा है? गए उस आवाज़ की तरफ, क्या देखा? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सहराए मदीना में मदीने की रेतली ज़मीन पर अपनी पेशानी रखे रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और मुनाजात इलाही में मसरूफ़, ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ है। और इस कैफियत में उनकी आंखों से गिरने वाले आंसू ने उनके गालों के नीचे की ज़मीन को तर कर दिया है। जब करीब आए, हाथ रखा तो महसूस हुआ गोया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की रूह परवाज कर चुकी है। परेशान हुए, भागम भाग आए, दरे अक़दस फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर दस्तक दी। बीबी दो आलम ने पूछा कौन? फरमाया सलमान हूँ। कहा रात के इस पहर क्या किस लिए आए हो? कहा कि या सय्यदत निसाइल आलमीन, ए अल्लाह के रसूल की प्यारी बेटी, मैंने आपके शोहर अली मुर्तज़ा को इस कैफियत में देखा है कि वो दुनिया से जा चुके हैं। मैं परेशान होकर आपके दरवाजे पर आया हूँ। फरमाया कि सलमान, क्या तुम नहीं जानते कि अली की हर रात की रविश यही है और अली इसी तरह से अल्लाह की बारगाह में गिरिया करते हैं, अल्लाह की बारगाह में राज़ो नियाज करते हैं, अल्लाह की बारगाह में ज़िक्र और फ़िक्र करते हैं और इस तरह से अश्क बहाकर एक ऐसी माँ की तरह से जिसके जवान बेटे का लाशा उसकी आंखों के सामने पड़ा हुआ हो, अल्लाह से राज़ो नियाज करते हैं और गिरिया व बुका करते हैं। ये अली की हर शब की रिवायत है, हर शब की उनकी सुन्नत है। जो इंसान जितना कामिल होगा वो उतना अल्लाह के करीब होगा और जितना वो अल्लाह के करीब होगा वो उतना अल्लाह से राज़ो नियाज करेगा। इसलिए सादिक़ आले मोहम्मद से जब किसी ने पूछा कि अपना रसूलुल्लाह, हमें कैसे मालूम हो कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर कितना मेहरबान है और कितनी उसकी रहमत हम पर नाजिल हो रही है? फरमाया कि वो अपनी ज़िंदगी में देखे कि जब वो दुआ मांगता है, जब वो राज़ो नियाज करता है, जब वो अल्लाह से गुफ्तगू करता है तो उसको कितनी लज्जत महसूस होती है। अनबिया की रविश ये थी। बक्का कहा गया बाज अनबिया को, बहुत ज्यादा रोने वाले। अमीरुल मोमिनीन की अपनी रविश यही थी, बाकी अइम्मा की अपनी रविश यही थी, सय्यदुस साजिदीन की अपनी रविश यही थी, रोने वाले। क्योंकि ये जो रोना है, ये उन्हें अल्लाह का महबूब बनाता है। ये रोना किसी तकलीफ की वजह से नहीं है, ये रोना किसी दुख की वजह से नहीं है, ये रोना अल्लाह से जुदाई और अल्लाह से फासले की वजह से है। और जो अल्लाह के औलिया होते हैं वो तन्हाइयों में इसी तरह से रोते हैं। इसलिए आयतुल्लाह उज़्मा बहजत ने ये फरमाते थे कि एक ज़माने में जब हम नजफ में होते थे तो हम फख्र महसूस करते थे कि नजफ में 70-80 से ज्यादा औलिया एट ए टाइम मौजूद होते थे और हरम अमीरुल मोमिनीन में सहर के मौके पर नमाज शब में दुआए अबू हमजा सुमाली अपने नमाज शब के कुनूत में पढ़ने वालों की तादाद 80 से ज्यादा होती थी। ये वही लोग इस बात का इदराक कर सकते हैं जिनको दुआए अबू हमजा सुमाली की बारीकियों और उसकी लताफतों का इल्म हो और उन्होंने पढ़ा हो और देखा हो कि वो कितनी बड़ी लज्जत है इस मुनाजात में जिसको दुआए अबू हमजा सुमाली कहते हैं। दुआए अबू हमजा सुमाली हजरत सय्यदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तालीम करदा दुआ है, लेकिन ऐसी दुआ जो रूह की आवाज है, ऐसी दुआ जो इंसान को
پرواز کے لیے پر عطا کرتی ہے، ایسی دعا جو انسان کو الہی بنا دیتی ہے، ایسی دعا جو انسان کی روح کے اندر موجود تمام قدورتوں سے انسان کو پاک کر دیتی ہے. یہ ایسی دعا، ایسا ذکر اور ایسا نسخہ ہے جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے. تو یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر صرف لفظی نہیں ہے. بعض لوگ بڑے مزے سے تسبیح ہاتھ میں لے کے غیبتیں کرتے رہتے ہیں، تسبیح کے دانے پھیرتے ہوئے دوسروں سے جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ذکر نہیں ہے، یہ کفر ہے. کوئی ذکر نہیں ہے. یہ ذکر چونکہ تسبیح کے دانوں کا پھیرنا نہیں ہے، جیسا کہ عرض ہوا، ذکر انسان کی روح کی عکاسی ہے کہ وہ روح تڑپے اور اللہ کی بارگاہ میں پوری طرح سے حاضر ہو، اور حاضر ہو کر اپنی تمام تر کوتاہیوں پر شرمندگی کا اظہار کرے اور اللہ سے مانگے. جب انسان اس کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ذکر و فکر کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اہل الذکر بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اور جو کچھ ہم سنتے ہیں ان سب پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے بحق علی و آل علی ہم سب کو نواز دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.